हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 6 माई चाइल्डहुड यानी मेरा बचपन। और ये कहानी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बचपन की कहानी। I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram. In the erstwhile Madras state. My father Jainal Abdeen had neither much formal education nor much wealth. Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit. He had an ideal helpmate in Mother Ashi Amma. I do not recall the exact number of people she fed every day, but I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together. मेरा जन्म एक मिडिल क्लास तमिल परिवार में हुआ था, रामेश्वरम के एक कस्बे में, जो उस समय मद्रास स्टेट में राज्य में हुआ करता था। मेरे पिता जैनुल अब्दीन के पास ना तो ज्यादा पढ़े लिखे थे और उनके पास ना ही ज्यादा पैसा था, पर इन सब के बावजूद वो बहुत ही समझदार थे और वो बहुत ही ज्यादा दयालु थे। उनको मेरी माँ में एक सच्चा जीवन साथी मिला, आशी अम्मा में। मुझे नहीं याद वो रोज कितने लोगों को खाना खिलाती थी, पर मुझे इतना याद है कि हमारे अपने परिवार को छोड़कर काफी बाहर वाले भी हमारे साथ रोज खाना खाते थे। I was one of many children, a short boy with rather undistinguished looks, born to tall and handsome parents. We lived in our ancestral house, which was built in the middle of the 19th century. It was a fairly large pakka house, made of limestone and brick, on the Mosque Street in Rameshwaram. My austere father used to avoid all inessential comforts and luxuries. However, all necessities were provided for in terms of food, medicine, or clothes. In fact, I would say mine was a very secure childhood, both materially and emotionally. मैं बहुत सारे बच्चों अपने माँ पापा के बहुत सारे बच्चों में से एक था, एक छोटा सा लड़का जो दिखने में कुछ ज्यादा अलग नहीं था, पर जिसके माता पिता बहुत ही लंबे और खूबसूरत थे। हम हमारे पुराने घर में रहते थे, जो कि 19वीं सदी के बीच में बना था। वो एक बहुत ही बड़ा पक्का मकान था जो कि ईंट पत्थर से बना था, और ये मकान रामेश्वरम की मस्जिद गली में था। मेरे बहुत ही साधारण पिता, वो हमेशा जो सारे ऐशो आराम है उन सब से दूर रहते थे, पर हमें सारी जरूरत की चीजें मिल जाती थी, जैसे खाना, दवाई, कपड़े। यहां तक कि मैं ये कहूंगा कि मेरा बचपन बहुत ही ज्यादा सुरक्षित था। The Second World War broke out in 1939 when I was 8 years old. For reasons I have never been able to understand, a sudden demand for tamarind seeds erupted in the market. I used to collect the seeds and sell them to a provision shop on Mosque Street. A day's collection would fetch me the princely sum of 1 anna. My brother-in-law Jalaluddin would tell me stories about the war, which I would later attempt to trace in the headlines in Dinamani. Our area, being isolated, was completely unaffected by the war. But soon India was forced to join the Allied forces and something like a state of emergency was declared. The first casualty came in the form of the suspension of the train halt at Rameshwaram station. The newspapers now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameshwaram road between Rameshwaram and Dhanuskori. That forced my cousin Samsuddin, who distributed newspapers in Rameshwaram, to look for a helping hand to catch the bundles, and as if naturally I filled the slot. Samsuddin helped me earn my first wages. Half a century later, I can still feel the surge of pride in earning my own money for the first time. दूसरा विश्व युद्ध 1939 में हुआ, जब मैं 8 साल का था, और कुछ कारणों से मुझे आज तक समझ नहीं आया कि क्यों इमली के बीज की एक डिमांड बढ़ गई थी बाजार में।
मैं इमली के बीज इकट्ठे किया करता था और उन्हें मस्जिद गली की एक किराने की दुकान में बेच दिया करता था। एक दिन के कलेक्शन में, यानी एक दिन में मैंने जितने बीज इकट्ठे किए होते थे उससे मुझे 1 अन्ना मिल जाता था। 1 अन्ना मतलब कि 6 पैसे के बराबर, मतलब 6 पैसा। और मेरे जो जीजा जी थे जलालुद्दीन, वो मुझे कहते थे, वो मुझे युद्ध की कहानियां सुनाया करते थे जो मैं फिर बाद में दीनामानी में ढूंढता था। दीनामानी अखबार का नाम है। हम जिस एरिया में रहते थे, हम जिस क्षेत्र में रहते थे, वो युद्ध से अभी भी उसमें युद्ध का अभी भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। पर जल्दी ही भारत जो है अपने आसपास के इलाकों की सेना से हाथ मिलाने वाला था और एक इमरजेंसी डिक्लेयर होने वाली थी, एक इमरजेंसी लगने वाली थी। पहला कुछ बुरा हुआ तब जब रामेश्वरम स्टेशन पे रुकने वाली ट्रेनों का रुकना बंद कर दिया गया, उनका सस्पेंशन आ गया। तब जो अखबार जो वहां आते थे, तो अब वो अखबार उस चलती हुई ट्रेन में से गिरने थे और उन्हीं में से इकट्ठे करने होते हमें। तो इस वजह से मेरा जो भाई था शमसुद्दीन, जो रामेश्वरम में अखबार बांटता था, वो ढूंढने लगा किसी को जो उसके साथ मिलकर उन अखबार के बंडलों को चलती ट्रेन में से कैच करेगा, और मैंने वो जगह ले ली। शमसुद्दीन ने मुझे मेरी पहली कमाई करने में मदद की और आज 1 सदी बाद मैं आज भी बहुत ही ज्यादा गर्व महसूस करता हूँ कि मैंने अपने पैसे खुद कमाए पहली बार। Every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figures of authority. I inherited honesty and self-discipline from my father. From my mother, I inherited faith in goodness and deep kindness. And so did my 3 brothers and sister. I had 3 close friends in my childhood, Ramananda Shastri, Aravindan and Shiva Prakashan. All these boys were from orthodox Hindu Brahmin families. As children, none of us ever felt any indifference amongst ourselves because of our religious differences and upbringing. In fact, Ramananda Shastri was the son of Pakshi Lakshmana Shastri, the high priest of the Rameshwaram temple. Later, he took over the priesthood of the Rameshwaram temple from his father. Aravindan went into the business of arranging transport for visiting pilgrims, and Shiva Prakashan became a catering contractor for the Southern Railways. हर बच्चा जब पैदा होता है तो वो अपने आसपास के समाज से कुछ ना कुछ चीज़ें उसमें बचपन से ही होती है, और हमारे जो बड़े होते हैं वो में अलग अलग तरीके से बड़ा परवरिश हमारी होती है। तो मुझे मेरे पिता से मिली उनकी ईमानदारी, उनकी सच्चाई और उनका अनुशासन, और मेरी माँ से मैंने अच्छाई में उनका विश्वास लिया और उनकी दया मिली मुझे। और ऐसा ही मेरे तीनों भाई बहनों में भी था। मेरे बचपन में 3 बहुत ही घने मित्र थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिवा प्रकाशन। ये तीनों लड़के कट्टर हिंदू ब्राह्मण परिवारों से थे, और जब हम बच्चे थे तो हमें आपस में कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हम सब अलग अलग हैं अपने धर्मों की वजह से। यहाँ तक रामानंद शास्त्री जो थे वो पाक्षी लक्ष्मणा शास्त्री, जो कि रामेश्वरम मंदिर के ऊंचे पूज्य सबसे बड़े पुजारी थे, उनके बेटे थे, और बाद में उन्होंने ही अपने पिता से रामेश्वरम मंदिर के पुजारी होने की गद्दी पे वो बैठे। अरविंदन जो थे वो वहाँ तीर्थ पे आने वाले लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट का काम संभालने लगे, उसका बिजनेस किया उन्होंने। और शिवा प्रकाशन जो थे वो दक्षिण रेलवे में एक केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गए। During the annual Sri Sita Rama Kalyanam ceremony, our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple to the marriage site situated in the middle of the pond called Ramatirtha, which was near our house. Events from the Ramayana and from the life of Prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family.
हर साल के वार्षिक श्री सीताराम कल्याणम जो समारोह था, उसमें हमारा परिवार नाव चलाने का काम करता था। जो नाव एक जगह से, जहाँ से वो मूर्तियाँ उठाकर, भगवान की मूर्तियाँ उठाकर मंदिर से, और जहाँ शादी होती उस जगह पे रखवाने का काम करते थे। और वो हमारे घर के पास ही थी वो जगह, रामतीर्थ। रामायण और मोहम्मद की जिंदगी से जुड़े हुए किस्से ही हमारे रात की कहानियां हुआ करती थी, जो मेरी माँ और मेरी दादी हम बच्चों को सुनाया करती थी। One day when I was in the 5th standard at the Rameshwaram Elementary School, a new teacher came to our class. I used to wear a cap which marked me as a Muslim, and I always sat in the front row next to Ramananda Shastri, who wore the sacred thread. The new teacher could not stomach a Hindu priest's son sitting with a Muslim boy. In accordance with our social ranking, as the new teacher saw it, I was asked to go and sit on the back bench. I felt very sad, and so did Ramananda Shastri. He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row. The image of him weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me. एक दिन जब मैं 5वीं कक्षा में था, रामेश्वरम की एलिमेंट्री स्कूल में, वहाँ एक नए टीचर हमारी क्लास में आए। मैं एक टोपी पहनता था जिससे ये पता चलता था कि मैं मुस्लिम हूँ, और मैं हमेशा आगे बैठता था रामानंद शास्त्री के बगल में, जो जनेऊ पहनते थे। नए टीचर से ये बात पची नहीं कि एक हिंदू पुजारी का बेटा एक मुस्लिम लड़के के साथ बैठा है, और इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि मैं जाकर पीछे बैठ जाऊं। मुझे बहुत बुरा लगा, और रामानंद शास्त्री को भी। उसे बिल्कुल नीच जाति जैसा महसूस हुआ जब मैं पीछे जाकर बैठ गया। उसका रोता हुआ चेहरा जब मैं आखिरी रो में बैठा, उसने मेरे दिल पे गहरा प्रभाव डाला। After school we went home and told our respective parents about the incident. Lakshmana Shastri summoned the teacher and in our presence told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children. He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school and the island. Not only did the teacher regret this behavior, but the strong sense of conviction Lakshmana Shastri conveyed ultimately reformed this young teacher. स्कूल के बाद हम लोग घर गए और अपने अपने माता पिता को इस बारे में बताया। लक्ष्मणा शास्त्री ने उस टीचर को बुलवाया और हमारी मौजूदगी में उस टीचर से कहा कि उसे ये भेदभाव के और धर्म अधर्म की का जहर हम मासूम बच्चों के दिमाग में नहीं फैलाना चाहिए। उन्होंने उन टीचर को कहा कि या तो माफ़ी मांगे या स्कूल छोड़ दे और ये कस्बा भी छोड़ दे। ना सिर्फ उस टीचर ने अपनी गलती की माफ़ी मांगी, बल्कि जिस तरीके से लक्ष्मणा शास्त्री ने अपनी बात रखी, उसने उस टीचर को बिल्कुल बदल दिया। On the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of the segregation of different social groups. However, my science teacher Siva Subramania Iyer, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife, was something of a rebel. He did his best to break social barriers so that people from varying backgrounds could mingle easily. He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of the big cities. पर पूरा अगर शहर की बात करें तो रामेश्वरम का छोटा सा समाज जो था वो बहुत ही अडिग था कि कैसे लोगों का बंटवारा होना चाहिए उनके धर्म के मुताबिक। हालांकि मेरे जो विज्ञान के अध्यापक थे शिवा सुब्रमण्य अय्यर, वो वैसे तो एक कट्टर ब्राह्मण थे और उनकी बीवी जो थी वो भी बहुत ही कट्टर ब्राह्मण धर्म को मानने वाली थी, पर वो ऐसे नहीं थे। उन्होंने अपनी तरफ से हमेशा पूरी कोशिश की कि वो इन धार्मिक बंधनों को तोड़े ताकि अलग अलग समाज के लोग आपस में ढंग से मिल सकें। वो मेरे साथ घंटों बिताते और कहते, कलाम, मैं चाहता हूं कि तुम आगे बढ़ो ताकि तुम
ये जो बड़े बड़े शहरों के बहुत ही पढ़े लिखे लोग हैं उनके बराबर आ सकूं। One day he invited me to his home for a meal. His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in a ritually pure kitchen. She refused to serve me in her kitchen. Siva Subramania Iyer was not perturbed, nor did he get angry with his wife, but instead served me with his own hands and sat down beside me to eat his meal. His wife watched us from behind the kitchen door. I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water, or cleaned the floor after the meal. When I was leaving his house, Siva Subramania Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend. Observing my hesitation, he told me not to get upset, saying, "Once you decide to change the system, such problems have to be confronted." When I visited his house the next week, Siva Subramania Iyer's wife took me inside her kitchen and served me food with her own hands. एक दिन उन्होंने मुझे अपने घर खाना खाने बुलाया। उनकी बीवी इस बात से बहुत परेशान हो गई कि उनकी पवित्र रसोई में एक मुस्लिम लड़का बैठकर खाना खाएगा। उन्होंने मुझे अपनी रसोई में खाना खिलाने से मना कर दिया। शिवा सुब्रमण्य अय्यर अपनी बीवी से ना तो नाराज हुए और ना ही ज्यादा भौचक्के, बल्कि उन्होंने मुझे अपने खुद के हाथों से खाना परोसा और मेरे बगल में बैठकर अपना खाना खाया। उनकी बीवी हमें किचन के दरवाजे के पीछे से देखती रही। मैंने सोचा क्या उन्हें मेरे चावल खाने में या पानी पीने में या उस आंगन को साफ करने में कोई फर्क नजर आया। जब मैं घर से जा रहा था तो शिवा सुब्रमण्य अय्यर ने मुझे अगले हफ्ते फिर उनके रात्रि भोजन के लिए वहां न्योता दिया। मेरे हिचक को देखते हुए उन्होंने मुझे कहा कि मैं परेशान ना हो। उन्होंने मुझसे कहा कि जब हम एक बार समाज को बदलने की ठान लेते हैं तो ऐसी मुश्किलें तो आती ही हैं। जब मैं उनके घर अगले हफ्ते गया तो शिवा सुब्रमण्य अय्यर की पत्नी ने खुद मुझे अंदर रसोई में बुलाया और मुझे अपने हाथों से खाना परोसा। Then the Second World War was over and India's freedom was imminent. Indians will build their own India, declared Gandhiji. The whole country was filled with an unprecedented optimism. I asked my father for permission to leave Rameshwaram and study at the district headquarters in Ramanathapuram. He told me as if thinking aloud, "Abul, I know you have to go away to grow. Does the seagull not fly across the sun alone and without a nest?" He quoted Khalil Gibran to my hesitant mother. "Your children are not your children. They are the sons and daughters of the life's longing for itself. They come through you, but not from you. You may give them your love, but not your thoughts, for they have their own thoughts." फिर दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था और भारत को आजादी मिल गई थी। गांधी जी ने कहा कि अब भारतीय खुद अपना भारत बनाएंगे। पूरे देश में एक अलग ही तरह का माहौल था। मैंने मेरे पिता से इजाजत मांगी कि मैं रामेश्वरम छोड़कर रामनाथपुरम में जाकर पढ़ूं। उन्होंने मुझसे कहा, "अबुल, मैं जानता हूं कि तुम्हें आगे बढ़ने के लिए दूर जाना जरूरी है। क्या एक पक्षी आसमान में अकेले उड़कर नहीं जाता उस सूरज से बहुत दूर और अपने घोंसले से बहुत दूर?" उन्होंने अब मेरी माँ की हिचक को देखते हुए खालिल गिब्रान के शब्दों में कहा, तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। वो जिंदगी के अपने बेटे और बेटी हैं। वो तुमसे आते हैं पर वो तुम नहीं हैं। तुम उन्हें अपना प्यार दे सकती हो पर अपने विचार नहीं, क्योंकि उनके अपने विचार हैं। तो अब हम करेंगे लेसन के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, आंसर दिस क्वेश्चंस इन 1 or 2 sentences each। तो हमें 1-2 सेंटेंस में इस क्वेश्चन के जवाब देने हैं। वेयर वॉज
अब्दुल कलाम्स हाउस। अब्दुल कलाम का घर कहाँ था? तो अब्दुल कलाम का घर था रामेश्वरम कस्बे में, जो उस समय मद्रास राज्य में था। What do you think Dinamani is the name of? Give a reason for your answer. तो आपको क्या लगता है दीनामानी किसका नाम है? तो दीनामानी एक अखबार का नाम है। और ये हमें ऐसा लगता है क्योंकि जब उन्होंने कहा कि उनके जीजा जी उन्हें युद्ध की कहानियां सुनाया करते थे, तो वो उन्हें दीनामानी की हेडलाइन में ढूंढा करते थे। तो हेडलाइन तो अखबारों की होती है। अगला क्वेश्चन है, हु वर अब्दुल कलाम स्कूल फ्रेंड्स? व्हाट डिड दे लेटर बिकेम? अब्दुल कलाम के स्कूल के दोस्त कौन थे और वो बाद में क्या बने? तो अब्दुल कलाम के स्कूल में 3 दोस्त थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिवा प्रकाशन। और वो तीनों बाद में रामानंद शास्त्री बाद में रामेश्वरम मंदिर के पुजारी बने और अरविंदन ने अपना ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू किया जो तीर्थ पे लोग आते थे उनके लिए, और शिवा प्रकाशन दक्षिण रेलवे में केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बने। हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस? अब्दुल कलाम की पहली कमाई किससे हुई? तो अब्दुल कलाम की पहली कमाई अखबार के बंडल इकट्ठे करने से हुई। अखबार के बंडलों को कैच करने से, जो चलती ट्रेन में से, उससे हुई। और उसमें उनकी मदद की उनके भाई शमसुद्दीन ने। हैड ही अर्न्ड एनी मनी बिफोर दैट? इन व्हाट वे? तो क्या उन्होंने उससे पहले कोई पैसे कमाए थे? किस तरीके से? तो जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ 1939 में, तब अचानक से बाजार में उसकी इमली के बीज की मांग बढ़ गई। तो अब्दुल कलाम इमली के बीज इकट्ठा किया करते थे, जो फिर पूरा दिन इकट्ठा करने के बाद वो मस्जिद गली में एक किराने की दुकान पर बेच दिया करते, जिससे उन्हें 1 अन्ना मिलता था। क्वेश्चन 2. Answer each of these questions in a short paragraph. 1. How does the author describe his father, his mother, himself? तो इन क्वेश्चंस का जवाब हमें एक शॉर्ट पैराग्राफ में देना है। तो ऑथर अपने आप को मतलब अब्दुल कलाम अपने पिता को कैसे बताते हैं, उनके बारे में क्या क्या बताते हैं, उनकी माँ के बारे में और खुद के बारे में। तो अपने पिता के बारे में वो बताते हैं कि उनके पिता बहुत ही साधारण आदमी थे। वो ना तो ज़्यादा पढ़े लिखे थे और उनके पास ना ही ज़्यादा पैसे थे, पर फिर भी वो ये विश्वास रखते थे, पर फिर भी वो उनमें बहुत ही ज़्यादा समझ थी और वो दिल से बहुत ही दयालु थे। वो ये भी कहते हैं कि वो सारी ऐशो आराम की चीज़ों से दूर रहते थे, पर उन्होंने कभी भी ज़रूरत की चीज़ें में कमी नहीं पड़ने दी अपने बच्चों के लिए, जैसे कि कपड़े, दवाई और खाना। और उनकी माँ के बारे में वो कहते हैं कि उनकी माँ जो थी वो बहुत ही ज़्यादा दयालु थी। उनके अंदर बहुत ही दया भाव था। उन्हें नहीं पता कि वो रोज़ कितने लोगों को खाना खिलाती थी, पर उन्हें इतना पता है कि उनके घर में उनके घर वालों को छोड़कर बहुत बाहर वाले भी रोज़ खाना खाया करते थे। तो ये था उनकी माँ के बारे में। और उन्होंने खुद के बारे में कहा कि 3 भाई बहनों में मैं भी एक बच्चा था जो बहुत ही छोटा था। मैं एक छोटा लड़का था जो दिखने में ना ज़्यादा कुछ अलग नहीं था, पर मेरे माँ बाप दोनों लंबे और बहुत ही खूबसूरत थे। तो ये तीनों चीज़ें उन्होंने अपने बारे में बताई। अगला क्वेश्चन है, What characteristics does he say he inherited from his parents? तो वो क्या कहते हैं, उन्हें अपने माता पिता से क्या क्या चीज़ें मिली? तो वो कहते हैं उन्हें अपने पिता से उनकी ईमानदारी और उनका अनुशासन मिला, और वहीं उनकी माँ से उनका सच्चाई में और अच्छाई में विश्वास और दया भाव मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, On the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of segregation of different social groups, says the author. Which social groups does he mention? Were these groups easily identifiable?
तो वैसे अगर पूरा देखा जाए तो रामेश्वरम का छोटा सा समाज बहुत ही ज्यादा अडिग था इस बात में कि लोगों को उनके समाज में स्तर के हिसाब से कैसे बांटना है अलग अलग समूह में। तो पहला क्वेश्चन है कि कौन से अलग अलग सामाजिक समूह थे जो उन्होंने कहे। तो जैसे अलग अलग सामाजिक समूह होते हैं लोगों की जमा पूंजी के बारे के ऊपर कि कोई बहुत ही अमीर परिवार से है, कोई गरीब है, या धर्मों के एहसास से कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। तो ये ग्रुप क्या आसानी से पहचान सकते? तो हाँ, इन समूह को आसानी से पहचान सकते थे। वो जिस तरीके से लोग कपड़े पहनते थे, जिस तरह का खाना खाते थे, या जिस तरीके का से वो अपने अपने धर्म को मानते थे। अगला क्वेश्चन है, वर दे अवेयर ओनली ऑफ द डिफरेंसेस और डिड दे आल्सो नेचुरली शेयर फ्रेंडशिप एंड एक्सपीरियंसेस? तो क्या उन्हें सिर्फ अपने बीच में फर्क दिखता था या वो आपस में उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी? तो जैसे कलाम के घर में, जैसे अब्दुल कलाम के घर में, तो इसका जवाब है कि नहीं, वो सिर्फ अपने फर्क के बारे में नहीं सोचते थे, क्योंकि जैसे अब्दुल कलाम के घर में उनकी माँ और उनकी दादी उन्हें रामायण और मोहब्बत दोनों की ही कहानियां सुनाया करती थी। और उनके जो तीनों दोस्त थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिवा प्रकाशन, वो तीनों कट्टर हिंदू परिवारों से थे। और उनके घर के पास के नदी में जो था वो हर साल का वार्षिक कल्याणम समारोह हुआ करता था। थर्ड है, द ऑथर स्पीक्स बोथ ऑफ पीपल हु आर वेरी अवेयर ऑफ द डिफरेंसेस अमंग देम एंड दोज हु ट्राई टू ब्रिज दीज डिफरेंसेस। कैन यू आइडेंटिफाई सच पीपल इन द टेक्स्ट? तो इस कहानी में जो ऑथर है, यानी कि जो लेखक है, वो दोनों ही तरह के लोगों के बारे में बात करते हैं, जो धर्मों में भेदभाव करते हैं और दूसरे जो इन भेदभाव को इन चीज़ों को कम करने की कोशिश करते हैं। तो पहले वो लोग जो इन धर्मों में भेदभाव करते हैं, वो जैसे वो जो नए टीचर आए थे कलाम की क्लास में, वो ऐसे थे। और दूसरा, शिव सुब्रमण्य अय्यर की जो पत्नी थी वो ऐसी थी। और दूसरे जो लोग इन चीज़ों को कम करने की कोशिश करते हैं, जैसे लक्ष्मण शास्त्री और शिव सुब्रमण्य अय्यर। Narrate 2 incidents that show how differences can be created and also how they can be resolved. How can people change their attitude? तो पहला जैसे जो वाक्य है कि जो ये दिखाता है कि लोगों में भेदभाव कैसे करा जा सकता है और उसको मिटाया भी कैसे जा सकता है। तो पहला होगा, जैसे जो नया टीचर आया था उन्होंने कलाम से कहा कि वो पीछे जाकर बैठ जाए क्योंकि वो मुस्लिम थे और उन्होंने टोपी लगा रखी थी, और आगे रामानंद शास्त्री को इसलिए बैठने दिया क्योंकि वो ब्राह्मण थे। तो इस तरीके से भेदभाव होता है। और इस भेदभाव को मिटाया कैसे? जैसे लक्ष्मण शास्त्री ने उनसे बात की, उन्हें समझाया, और इस तरीके से वो टीचर का व्यवहार बिल्कुल बदल गया। और दूसरा वाक्य, जब शिव सुब्रमण्य अय्यर ने अपने घर कलाम को खाना खाने बुलाया और उनकी बीवी ने मना कर दिया कि वो अपनी पवित्र रसोई में एक मुस्लिम लड़के को नहीं खाना खिलाएंगी, पर फिर भी शिव सुब्रमण्य अय्यर ने अपने खुद के हाथों से उन्हें खाना खिलाया और उन्हें उनके बगल में बैठकर खुद खाना खाया। और जब अगली बार वो आए तो फिर उनकी पत्नी ने ही, यानी कि शिव सुब्रमण्य अय्यर की पत्नी ने ही कलाम को खाना खिलाया अपनी रसोई में और अपने ही हाथों से। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड अब्दुल कलाम वांट टू लीव रामेश्वरम? अब्दुल कलाम रामेश्वरम क्यों छोड़ना चाहते थे? तो अब्दुल कलाम रामेश्वरम अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए छोड़ना चाहते थे। वो जिले हेडक्वार्टर में जाकर, यानी कि रामनाथपुरम में जाकर पढ़ना चाहते थे। What did his father say to this? उनके पिता ने इस पर कहा कि कलाम, मैं जानता हूं कि तुम्हें आगे बढ़ने के लिए जाने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने के लिए अपना घर छोड़ने की ज़रूरत है। क्या एक पक्षी भी अपना घर छोड़कर, अपना घोंसला छोड़कर सूरज के उस पार नहीं जाता खाना ढूंढने के लिए? What do you think his words mean? Why do you think he spoke these words? उनके शब्दों का मतलब क्या था और क्या आपको क्या लगता है उन्होंने ये शब्द क्यों कहे?
तो उनके शब्दों का कहने का मतलब ये था कि बच्चे जो होते हैं उनके अपने विचार होते हैं और वो आगे बढ़ने के लिए अगर उन्हें दूर जाना पड़ता है, अगर आपको कुछ अच्छा करना पड़ता है तो आपको कुछ पीछे छोड़ना भी पड़ता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज। फाइंड द सेंटेंसेस इन द टेक्स्ट वेयर दीज वर्ड्स अकर। तो अब हमें ऐसे सेंटेंसेस ढूंढने हैं इस पूरे टेक्स्ट में, यानी कि इस पूरे लेसन में जहां जहां ये शब्द आए हैं। तो पहला है इरप्ट। तो अब हमें ढूंढना है कि इरप्ट शब्द कहाँ आया है। तो जैसे कि थर्ड पैराग्राफ है, उसकी जो चौथी लाइन है उसमें ये शब्द आया है जहाँ पे ये है फॉर रीजंस आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड a sudden demand for tamarind seeds erupted in the market। तो ये है erupt शब्द यहाँ आया है। फिर अगला शब्द है सर्ज। तो ये थर्ड पैराग्राफ की ही आखिरी लाइन में देखना है। हाफ अ सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये हो गए ये दोनों शब्द। अब तीसरा शब्द है ट्रेस। तो ट्रेस है शब्द है जहां दीना मानी के बारे में बात हुई है। ये है थर्ड पैराग्राफ में ही लाइन इरप्टेड के नीचे वाली लाइन। माय ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वॉर विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन दीना मानी। अब अगला सवाल है, अब अगला शब्द है अनडिस्टिंग्विश। तो अनडिस्टिंग्विश्ड है सेकेंड पैराग्राफ में। आई वॉज वन ऑफ मेनी चिल्ड्रेन, अ शॉर्ट बॉय विथ रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स। और आखिरी शब्द है कैजुअलिटी। ये है थर्ड पैराग्राफ में बीच में लाइन है द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। तो ये हमें मिल गए सारे शब्द इस लेसन में। अगला है कि अब हमें आपको क्या करना है, आपको डिक्शनरी में जाकर इन शब्दों के मतलब देखने हैं कि इनको हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हमें देखना है जैसे इरप्ट का मतलब क्या होता है और क्या क्या चीजें इरप्ट कर सकती है। तो जैसे वोल्केनोज होते हैं वो फटते हैं, तो इरप्ट मतलब एकदम से बाहर आना। सर्ज का मतलब होता है, फिर है सर्ज जिसका मतलब आप डिक्शनरी में देख सकते हो। फिर अगला है जैसे व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड ट्रेस। और ट्रेस का मतलब होता है किसी चीज को छापना या किसी चीज को ढूंढना। फिर है अनडिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश का मतलब अलग और अनडिस्टिंग्विश का मतलब कुछ ज्यादा अलग नहीं। ठीक है। अब है अगला मैच द कॉलम। तो हमें इन शब्दों को उनके मतलब से जोड़ना है। तो पहला है फर्स्ट है ब्रोक आउट। तो ब्रोक आउट का है सी बिगैन सडनली इन अ वायलेंट वे, मतलब एक बहुत हिंसात्मक तरीके से एकदम कोई चीज शुरू हो जाना। सेकंड है इन अकॉर्डेंस विथ। इन अकॉर्डेंस का मतलब होगा अकॉर्डिंग टू इन अकॉर्डेंस विथ का मतलब होगा एफ। सेकंड का होगा एफ अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर रूल प्रिंसिपल और सिस्टम, मतलब एक तरीके के नियम के हिसाब से। थर्ड है अ हेल्पिंग हैंड। तो इसका होगा असिस्टेंट, मतलब कोई साथ देने वाला, डी। थर्ड का है डी। फोर्थ है कुड नॉट स्टमक। फोर्थ का कुड नॉट स्टमक का होगा वॉज नॉट एबल टू टॉलरेट, यानी कि बी। फिर फिफ्थ है जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट। इसका है ए। एन एटीट्यूड ऑफ काइंडनेस, अ रेडीनेस टू गिव फ्रीली। और फिर लास्ट है सिक्स फिगर्स ऑफ अथॉरिटी। इसका होगा ई, पर्सन्स विथ पावर टू मेक डिसीजंस। ठीक है। तो अब है अगला क्वेश्चन, स्टडी द वर्ड्स इन इटैलिक्स इन द सेंटेंसेस बिलो। तो अब जैसे हमें इटैलिक्स में देखा है, तो अगर हमें किसी भी शब्द का विलोम शब्द लिखना होता है तो हम उसके आगे UN लगा देते हैं, अन, या फिर IN इन लगा देते हैं, या फिर IL इल भी लगा सकते हैं, IR भी लगा सकते हैं, IM भी लगा सकते हैं। तो अब हमें इस बॉक्स में दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं।
तो एडिक्वेट का होगा इनएडिक्वेट, इसके आगे लग जाएगा IN। दूसरा है डिमांडिंग, डिमांडिंग का होगा अनडिमांडिंग, यानी कि UN लग जाएगा इसके आगे। फिर है पैट्रियोटिक, तो होगा अनपैट्रियोटिक, UNPATRIOTIC, अनपैट्रियोटिक। फिर है लॉजिकल, तो इसका होगा इलॉजिकल, इसके आगे लग जाएगा IL। फिर है एक्सेप्टेबल, इसका होगा अनएक्सेप्टेबल, UN लगेगा। एक्टिव के आगे लगेगा इनएक्टिव, IN। डिस्प्यूटेड के आगे लगेगा UN, अनडिस्प्यूटेड। लीगल के आगे लगेगा इलीगल, IL। रेगुलर के आगे लगेगा IR, इरेगुलर, IR। फिर ट्रू के आगे लगेगा अनट्रू, UN। एक्सेसिबल के आगे लगेगा इनएक्सेसिबल, IN। रिस्पॉन्सिबल के आगे लगेगा IR, इररिस्पॉन्सिबल। टॉलरेंट के आगे लगेगा इनटॉलरेंट, INTOLERANT। फिर परमानेंट के आगे लगेगा इम्परमानेंट, IM। फिर कोहेरेंट के आगे लगेगा UN, अनकोहेरेंट। फिर पॉसिबल के आगे लगेगा इम्पॉसिबल, यानी कि IMPOSSIMBLE, इम्पॉसिबल। अब अगला है पैसिव वॉइस। तो अब हमें ये जो नीचे फोर्थ में देखना, आप जो सेंटेंसेस दिए गए हैं नीचे, इनको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो है इन यस्टरडे कॉम्पिटिशन द प्राइजेस वर गिवन अवे बाय द प्रिंसिपल, वर गिवन अवे बाय द प्रिंसिपल। फिर सेकेंड है इन स्पाइट ऑफ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज द लेबरर्स पेड ऑन टाइम, PAID, पेड ऑन टाइम। थर्ड है ऑन रिपब्लिक डे व्हीकल्स वर नॉट अलाउड बियॉन्ड दिस पॉइंट, WERENOT, not ALLOWED, not allowed beyond this point. Second hand books are bought and sold on the payment every Saturday, यानी कि आर सेकेंड हैंड बुक्स आर ARER BOUGHT bought, AND and SOLD sold. फिर है इलेक्शंस टू द लोक सभा आर हेल्ड एवरी 5 years, ARER HELD held. फिर है आर नेशनल एंथम वॉज कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर, was 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 COMPOSED composed BY by। अगला है फिफ्थ, रीराइट द पैराग्राफ्स बिलो यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो अब हमें क्या करना है, हमें इन पैराग्राफ को दोबारा लिखना है। बस इसमें जो ब्रैकेट में यानी कोष्टक में जो शब्द दिए गए हैं उनको सही तरीके से इस्तेमाल करके। जैसे पहला है हाउ हेलमेट्स केम टू बी यूज्ड इन क्रिकेट। नारी कॉन्ट्रैक्टर was a captain and an opening batsman for India in the 1960s. The Indian cricket team went on a tour to the West Indies in 1962. In a match against Barbados in Bridgetown, Nari contractor got seriously injured, INJURED, and collapsed, COLLAPSED. In those days, helmets were not worn. In those days, they did not wear helmets. Contractor got hit, GOT hit on the head by a bouncer from Charlie Griffith. Contractor's skull got fractured, GOT got fractured, FRACTURED, fractured. The entire team was deeply concerned. WAS was DEEPLY, deeply, CONCERNED, concerned.
The West Indies players were worried. Were, W-E-R-E, were, W-O-R-R-I-E-D, worried. Contractor was rushed to the hospital. W-A-S was, R-U-S-H-E-D, rushed to hospital. He was accompanied by Frank Worrell, the captain of the West Indies team. He was accompanied. W-A-S was, A-C-C-O-M-P-A-N-I-E-D. Blood was donated by the West Indies players. W-A-S was, D-O-N-A-T-E-D. Thanks to the timely help, contractor was saved. W-A-S was, S-A-V-E-D, saved. Nowadays, helmets are routinely used against bowlers. A-R-E-R-R-O-U-T-I-N-E-L-Y, routinely, U-S-E-D, used. Next है oil from seeds. Vegetable oils are made from seeds and fruits of many plants growing all over the world. तो पहले ब्रैकेट से के पहले आएगा made, M-A-D-E, made. Oil produced from cotton seeds, groundnuts, soya beans and sunflower seeds. ऑयल तो सेकेंड ब्रैकेट के बाद आएगा प्रोड्यूस्ड, यानी कि प्रोड्यूस के बाद में डी लग जाएगा, PRODUCET. ऑलिव ऑयल इज यूज्ड फॉर कुकिंग, सैलेड ड्रेसिंग एक्सेट्रा. ऑलिव ऑयल थर्ड ब्रैकेट के बाद आएगा, पहले आएगा IS इज USED, यूज्ड. Olives are shaken from the trees and gathered up usually by hand. Olives are, फोर्थ ब्रैकेट से पहले आएगा ARERSHAKEN, shaken. फिर फिफ्थ ब्रैकेट से पहले आएगा gathered, GATHERED, gathered by up usually by hand. The olives are grounded to a thick paste which is spread onto special mats. Olives are grounded, ARERGROUNDED. Then the mats are layered up on the pressing machine which will gently squeeze them to produce olive oil. Then the mats are RARLAYERED, layered up. अगला है डिक्टेशन. तो अब हमें अब आपके टीचर जो है वो इस पैराग्राफ को डिक्टेट करेंगे और आपको इसको सही ऑर्डर में लगाना है. ठीक है. अब है अगला है स्पीकिंग. तो यहाँ आपको एक टॉपिक दे रहे हैं जिसके ऊपर आपको बोलना है. तो ये टॉपिक है. करियर बिल्डिंग इज द ओनली गोल ऑफ एजुकेशन. मतलब पढ़ाई का इकलौता गोल यही है कि करियर बन जाए, या फिर गेटिंग अ गुड जॉब इज मोर इम्पोर्टेंट देन बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग. मतलब एक अच्छे इंसान से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छी नौकरी मिलना. तो अब आपको इसके बारे में अपने अपने विचार रखने हैं अपने टीचर के सामने. अगला है राइटिंग. थिंक एंड राइट अ शॉर्ट अकाउंट ऑफ व्हाट लाइफ इन रामेश्वरम इन द 1940s मस्ट हैव बीन लाइक. तो अब आपको सोचकर ये लिखना है कि
1940 में रामेश्वरम में जिंदगी कैसी होगी? क्या वहाँ के लोग अमीर थे, गरीब थे, बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले थे, आलसी थे, कैसे थे? ठीक है, तो अब हम करेंगे पोएम। तो इस पोएम का नाम है नो मैन आर फॉरेन, मतलब कि कोई भी आदमी या कोई भी इंसान किसी दूसरे देश का नहीं है, यानी कि सब जैसे हैं और सब एक ही जगह के हैं। रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्री इज फॉरेन, beneath all uniforms a single body breathes like ours. The land our brothers walk upon is earth like this in which we all shall lie. तो पहली लाइन में कवि कहते हैं कि कोई भी आदमी अलग नहीं है और कोई भी देश आपके लिए विदेश नहीं है। तो वो ये कोशिश कर रहे हैं कि वो जो धरती पे अलग अलग बॉर्डर बन गई है वो उन्हें हटाएं, जो अलग अलग देशों को अलग करती है। तो इससे कोई भी देश विदेश नहीं रहेगा। हम सब हर जगह हर जमीन पर अपने ही देश जैसा महसूस करेंगे जब कोई भी बॉर्डर नहीं होगी, हर कोई कहीं पर भी घूम सकता है आज़ाद होकर। कवि कहना चाहते हैं कि पूरी धरती एक ही है और जो लोग इस धरती पर रह रहे हैं वो भी एक ही इंसान है। फिर वो कहते हैं कि जो ये सोल्जर, जो हमारे सैनिक, जो ये वर्दी पहनते हैं अलग अलग देश के, वो इंसान भी तो एक ही है। भगवान ने हम सबको एक जैसा ही बनाया है, सब एक जैसे ही सांस लेते हैं। फिर वो कहते हैं कि सारे सैनिक हमारे भाई हैं और हम सब धरती माँ पर एक जैसे ही चलते हैं और सब इसी धरती पर मरते भी हैं और सब एक ही कब्र में दफन होते हैं। They too aware of the sun and air and water are fed by peaceful harvest, by war's long winter starved. Their hands are ours and in their lines we read a labor not different from our own. यहाँ दे का मतलब वो लोग हैं जो दूसरे देशों के हैं। हम उन्हें फॉरेनर बोलते हैं और उनके साथ भेदभाव करते हैं और उनसे लड़ते भी हैं। कवि कहते हैं कि प्रकृति ने हर किसी को बहुत कुछ दिया है। हर किसी को धूप मिलती है, हवा मिलती है, पानी मिलता है, उतना ही जितना हमें मिलता है। इसका मतलब भगवान ने लोगों के बीच में फर्क नहीं किया। हम सब जब शांत होते हैं, जब युद्ध नहीं होता, तब हम सब खेती करते हैं, हम सब एक शांत जिंदगी जीते हैं और प्रकृति से मिली हुई चीजें खाते हैं। आगे वो कहते हैं कि हम सब युद्ध के समय और सर्दियों के समय हमें भूखा रहना पड़ता है और यही सारे देशों में होता है। उन्हें भी उस वक्त खाना नहीं मिलता। तो वो ये कहना चाहते हैं कि फॉरेनर, जो दूसरे देश के लोग हैं, वो और हम एक ही हैं। और फिर कवि कहते हैं कि उनके हाथ भी हमारे जैसे ही हैं, वो भी उतनी ही मेहनत करते हैं जितनी हम करते हैं। Remember they have eyes like ours that wake, or sleep and strength that can be won by love. In every land is common life that all can recognize and understand. फिर कवि पूछते हैं जो पढ़ रहे हैं रीडर उनसे कि क्या उन्हें याद है कि हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए कि ये जो दूसरे देश के लोग हैं जिन्हें हम अपना दुश्मन समझते हैं, उन्हें भी भगवान ने हमारे जैसा ही बनाया है। भगवान ने भी उनको वही आंखें दी हैं जो जब हम जागते हैं तब खुली रहती है और जब सोते हैं तब बंद। यहाँ तक कि उनमें भी उतनी ही ताकत है और उनमें बहुत ताकत दी है जिसे हम प्यार से जीत सकते हैं। फिर वो कहते हैं हर देश में, हर जमीन पर एक चीज सेम है, वो है जिंदगी मतलब वो सारी चीजें जो जी रही हैं। और अगर हम उन्हें पहचान जाएं और उनके अंदर जो चल रहा है वो समझ जाएं, तो हमें ये समझ आएगा कि वो भी हमारे जैसे ही हैं और तब कोई लड़ाई झगड़े नहीं होंगे हम में।
फिर है इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल. It let us remember whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispossess between them. Remember, we who take arms against each other. आगे कवि कहते हैं कि हमें याद रखना चाहिए जब भी कोई हमें कहे कि दूसरे देश के लोगों से नफरत करो, उन्हें दुश्मन समझो, तो जब भी हम किसी को अपना दुश्मन समझते हैं तो हम अपने आप के साथ ही बुरा करते हैं, हम अपने आप के साथ धोखा करते हैं, हम अपने आप को दुख पहुंचाते हैं. हमें ऐसी नेगेटिविटी से, हमें ऐसी बुरी भावनाओं से दूर रहना चाहिए. हमें अपने आप को किसी का भी दुश्मन नहीं समझना चाहिए. जब एक युद्ध होता है तो दोनों ही तरफ जो युद्ध करते हैं उन दोनों को ही नुकसान होता है. इसलिए कवि कहते हैं कि युद्ध हमारे लिए अच्छा नहीं है. वो कहते हैं कि जब भी हम किसी के खिलाफ कोई हथियार उठाते हैं हमें एक चीज याद रखनी चाहिए. इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल. आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरीच द इनोसेंस of air that is everywhere our own. Remember, no men are foreign and no country strange. तो वो कहते हैं कि जब भी हम किसी के खिलाफ कोई हथियार उठाते हैं हमें दिमाग में रखना चाहिए कि हम धरती को गंदा कर रहे हैं, क्योंकि हथियार लोगों को मारते हैं, उनका जो शरीर होता है वो धरती पर गिरकर उसे गंदा बनाता है. जहाँ युद्ध होता है वहाँ बहुत खून खराबा, आग और मौत होती है. ये मरे हुए शरीर धरती पर इकट्ठे होते हैं और उसे अपवित्र बनाते हैं. युद्ध की जो आग होती है वो, उसमें से जो धुआं निकलता है वो जब हवा में बढ़ता है तो वो इतना गंदा होता है कि वो पूरी हवा की पवित्रता को खराब, दूषित कर देता है. इन सारी चीज़ों के साथ कवि ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि हमें युद्ध नहीं करना चाहिए. और आखिर में वो कविता का अंत भी पहली ही लाइन को उल्टा लिखकर कहते हैं कि याद रखो, कोई भी इंसान विदेशी नहीं है और कोई भी देश अलग नहीं है. तो अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर. पहला क्वेश्चन है, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स व्हाट यूनिफॉर्म्स डू यू थिंक द पोएट इज स्पीकिंग अबाउट. तो बीनीथ ऑल, आपको क्या लगता है कौन सी वर्दी की बात यहाँ कवि कर रहे हैं. तो कवि बात कर रहे हैं वो अलग अलग वर्दियाँ और वो अलग अलग कपड़े जो अलग अलग देश के लोग पहनते हैं, पर उनके अंदर तो जो शरीर है इंसान का वो तो एक ही है. दूसरा है, कवि क्या, हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट ऑल पीपल ऑन अर्थ आर सेम. कवि कैसे बताते हैं कि धरती पे सारे लोग एक जैसे हैं. कवि कहते हैं कि अलग अलग कपड़ों के पीछे एक ही इंसान, एक ही शरीर तो सांस ले रहा है और हर जगह जमीन भी तो एक ही है. क्वेश्चन 2, इन स्टैंजा 1 फाइंड 5 ways in which we all are alike. पिक आउट द वर्ड्स. तो स्टैंजा 1 में कवि 5 तरीके बताते हैं जिसमें हम सब एक जैसे हैं. तो पहले स्टैंजा में कवि कहते हैं कि हम सबके एक जैसा शरीर है, हम सब एक जैसे कपड़े पहनते हैं, एक ही धरती पर चलते हैं और आखिरकार हर इंसान एक जैसा है. क्वेश्चन 3, हाउ मेनी कॉमन फीचर्स कैन यू फाइंड इन स्टैंजा 2. तो आपको स्टैंजा 2 में क्या क्या कॉमन चीज़ें दिखाई देती है अलग अलग देश के लोगों में. पहला है सूरज, दूसरा है हवा, तीसरा है पानी, चौथा है कि अपने आप को जिंदा रखने के लिए उगाए जाने वाला खाना, और हाथ, आंखें, ये सब एक जैसी हैं. क्वेश्चन 4, whenever we are told to hate our brothers, when do you think this happens? Why? Who tells us? Should we do as we are told at such times? What does the poet say? तो आपको क्या लगता है कौन है वो लोग जो हमें बताते हैं कि हमें अपने भाइयों से नफरत करनी चाहिए? क्या हमें वैसा करना चाहिए जैसा हमें लोग कहें? कभी कभार कुछ स्वार्थी लोग मासूम लोगों को भड़काते हैं कि वो दूसरे लोगों का
दूसरे लोगों को परेशान करें, वो अपने फायदे के लिए ऐसा करते हैं। तो जो आम आदमी होता है उसे समझ नहीं आता कि वो किस चालाकी से उनसे दूसरे इंसानों से नफरत करवा रहे हैं। वो उनसे कहते हैं कि दंगे करो, तो कवि कहते हैं कि किसी को भी दूसरों की सलाह नहीं माननी चाहिए बिना उस पर सोच विचार करे। इसलिए कवि बार बार कहते हैं कि उनमें और विदेशियों में कोई फर्क नहीं है, पूरी दुनिया में लोग एक जैसे हैं। तो ये था हमारा लेसन नंबर 6। तो इस पोएम का नाम